about challenges of beginning teachers. Challenges of beginning teachers actually have a different nature. So, beginning teachers often encounter a range of challenges as they adjust to their roles in the classroom and environment. تو چونکہ جو ٹیچر نیا ہوتا ہے اس کے لیے کلاس روم کا ایکسپیرینس بھی نیا ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ ماحول نیا ہوتا ہے، انوائرمنٹ نیا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ڈفرینٹ ٹائپ کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجز میں جن پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے آرگنائزیشنل چیلنجز ہیں، کلاس روم مینجمنٹ ہے، لیسن پلاننگ ہے، ڈفرینشیشن ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، اسٹیبلشنگ ریلیشن شپس ہے، ڈیلنگ ود اسٹریس ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، ورک لائف بیلنس ہے، ہینڈلنگ پیرنٹ کمیونیکیشن ہے، اور کوپنگ ود سیٹ بیکس بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں آرگنائزیشنل پرابلمس کی طرف۔ تو آرگنائزیشن میں جب کوئی نیا ٹیچر جاتا ہے تو اس کو بہت ساری ڈیوٹیز شروع میں دے دی جاتی ہیں۔ دے آر اوور سیچوریٹڈ ود ڈیوٹیز، یعنی ان کو ڈیوٹیز بہت زیادہ دے دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے ان کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ Number 2, rules and culture are not well known to new teachers and seniors do not provide sufficient support. سینئر کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں یہ تو سادہ سی باتیں ہیں، یہ تو پتہ ہی ہوگا ان کو، حالانکہ انہیں نہیں پتہ ہوتا، انہیں رولز کا بھی نہیں پتہ ہوتا، انہیں کلچر کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر انہیں سینئر کہتے ہیں یا یہ تو سادہ سی بات ہے، یہ تو آپ کو خود دیکھنی چاہیے تھی۔ تو اس سے ایک یہ بھی ان کا چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج کی صورت میں ان کے سامنے آتا ہے۔ نمبر 3 ہے جی بگننگ ٹیچرز آر الاٹڈ یوزلی۔ نمبر 1 دی کلاسز سینئر ٹیچرز ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیچ، یعنی مشکل کلاسیں ہیں، مشکل سبجیکٹ ہیں جن کو سینئر ٹیچر پڑھانا نہیں چاہتے تو وہ ان کو مل جاتی ہیں۔ دی موسٹ چیلنجز اینڈ پرابلمیٹک ٹاسکس اور کلاسز، یعنی جو سب سے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، چیلنجنگ کلاسز ہوتی ہیں یا ٹاسک ہوتے ہیں تو وہ ان کو مل جاتے ہیں۔ تھرڈ ون ہے دی موسٹ ٹربلسم ڈیوٹیز اینڈ ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دی کلاس روم، یعنی جو کلاس روم کے باہر جو زیادہ ٹربلسم ڈیوٹیز ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، وہ ان کو ملتی ہیں۔ اور فورتھ پوائنٹ ہے لاسٹ ہے اسیسمنٹس نو باڈی وڈ لائک ٹو میک، یعنی ایسی چیزوں کی ویلیویشن ہے، اسیسمنٹ ہے جو دوسرے جن کو پسند نہیں کرتے، ان پاپولر ہوتی ہیں، اس میں کسی طرح کا اعتراض آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو نئے ٹیچر جاتے ہی فیس کرتے ہیں۔ وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ، establishing authority, managing student behavior and maintaining a positive learning environment can be discouraging for new teachers who are still developing their classroom management skills. یعنی کلاس روم کے اندر یہ باور کرانا کہ اس کی اتھارٹی ہے، اس کے طریقے سے کلاس روم نے چلنا ہے، یہ بھی ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ اور ایک اچھا نان تھریٹننگ انوائرمنٹ کلاس روم کے اندر ایک کریٹ کرنا بھی چیلنجنگ ہوتا ہے، اور بہت سارے ٹیچر اسے نہیں کر پاتے تو اس سے ڈسکرج ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی مینجمنٹ سکلز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں۔ سی پوائنٹ ہے جی لیسن پلاننگ، ڈیزائننگ انگیجنگ اینڈ effective lessons that align with curriculum standards and cater to the diverse needs of students can be time consuming and challenging for beginning teachers, especially those with limited experience. تو جو ہے وہ ایسے لیسن کو پلان کرنا جو اسٹوڈنٹ کو انگیج کر سکیں اور افیکٹو بھی ہوں، اور وہ کریکولم کے سٹینڈرڈ کے ساتھ بھی الائن ہوں، اسٹوڈنٹ کی جو ڈائیورس ٹائپ کی نیڈز ہیں ان کے ساتھ بھی الائن ہوں، یہ بہت ہی ٹائم کنزیومنگ کام ہے اور یہ چیلنجنگ ہوتا ہے نیو ٹیچر کے لیے، خاص طور پر جب ان کا تجربہ بھی محدود ہوتا ہے۔ ڈی پوائنٹ ہے جی ڈفرینشیشن، یعنی فرق کرنا، اڈیپٹنگ انسٹرکشن ٹو میٹ دی انڈیویجول نیڈز، abilities,
learning styles of students can be difficult for new teachers who are still learning how to differentiate their teaching to accommodate diverse learners. यानी क्लासरूम में मुख्तलिफ एबिलिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं और उन सब को अपनी टीचिंग को हर एक के साथ एडजस्ट करना एक चैलेंज है जो कि नए टीचर के लिए एक उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। टाइम मैनेजमेंट, बैलेंसिंग टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग लेसन्स, ग्रेडिंग असाइनमेंट्स, अटेंडिंग मीटिंग and engaging in professional development can be overwhelming for beginning teachers। यानी जो है वो टीचिंग की जो जिम्मेदारियां हैं, लेसन भी प्लान करने होते हैं, जो पेपर चेकिंग है, उनकी ग्रेडिंग है, मीटिंग्स होती हैं, और फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी बिगिनिंग टीचर के लिए ज़्यादा होते हैं ताकि उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक एनवायरनमेंट है, उनसे मानूस किया जा सके। तो ये सारी जिम्मेदारियां उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, उनके बोझ के नीचे दब जाते हैं और उनके लिए फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तमाम तर एक्टिविटीज के लिए, और ख़ास तौर पर उन्हें अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल लगता है। FSC जो चैलेंज है वो है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स। Building positive relationships with students, colleagues, administrators and parents is crucial for success of a teacher। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे एक अच्छा ताल्लुक बनाना कामयाबी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब वो नए इदारे में जाते हैं तो इतने सारे लोगों को एट ए टाइम डील करना उनको मुश्किल लगता है। But it can take time for new teachers to establish rapport and earn the trust and the respect of others in the organization and community। लेकिन ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होता, नए टीचर को टाइम लगता है ताकि वो इस तरह का तल्लक, ट्रस्ट का तल्लक, इत्मीनान का तल्लक सबसे बनाएं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और कम्युनिटी में भी रिस्पेक्ट बढ़े। फिर है जी डीलिंग विद स्ट्रेस है। जाहिर है हर जॉब का स्ट्रेस होता है और टीचिंग का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। टीचिंग कैन बी इमोशनली एंड फिजिकली डिमांडिंग, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल इसमें एनर्जी भी लगती है और जाहिर है एक जिस्मानी थकावट भी होती है। एंड बिगिनिंग टीचर्स मे एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एज दे नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ द प्रोफेशन। जब उन्हें प्रोफेशन के चैलेंजेस से वास्ता पड़ता है तो उन्हें हाई लेवल का स्ट्रेस होता है। As they navigate the challenges of the profession, cope with classroom issues and strive to meet the expectation। ज़ाहिर है प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस हैं, क्लासरूम के इश्यूज के साथ उन्होंने कोप विद करना है, उन्हें डील करना है, और फिर अदारे की उनसे एक्सपेक्टेशन भी हैं, स्टूडेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी अपनी भी एक्सपेक्टेशन है। तो इन सब को मीट करना रियली बहुत चैलेंजिंग है, मुश्किल है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट है जी इच पार्ट इसका। Continuing to learn and grow as an educator is important। जाहिर है एजुकेटर हैं तो एजुकेशन तो गेन करेंगे, किसी बर्तन में अगर कुछ डालेंगे तो ही निकलेगा और जो डालेंगे तो ही निकलेगा। अच्छी सोचें डालेंगे तो अच्छी सोचें जुबान पर आएंगी, नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो मनफी चीज़ें जुबान पर आएंगी। तो इसमें बट बिगिनिंग टीचर्स में स्ट्रगल टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी जो नए टीचर्स हैं उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मौके ही नज़र नहीं आते, हालांकि वो मौजूद होते हैं, और फील ओवरवेल्म बाय द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। या तो फिर वो इतनी सारी उनके पास मौके होते हैं कि उनके लिए उसको मीट करना ही मुश्किल होता है। यानी वो कहते हैं कि कल तो 3 तरह की प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, मैं किस में जाऊं। तो ये दोनों तरह के चैलेंजेस उनके लिए मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है जी वर्क लाइफ बैलेंस। ये भी उनके लिए मुश्किल होता है। पहले तो वो जॉब के बगैर वन वे और दी अदर चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, जब जॉब भी ऐड हो जाता है तो जॉब को और बाकी जो उनकी अपनी ज़िंदगी है उसके दरमियान एक बैलेंस रखना उनके लिए मुश्किल लगता है।
achieving a healthy balance between work and personal life can be challenging for beginning teachers. वैसे तो ये हर तरह के काम में, हर तरह के जॉब में ये एक मुश्किल काम है टीचर्स के लिए, और ख़ास तौर पर बिगिनिंग टीचर्स के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है. Who may feel pressure to devote all their time and energy to the job, जिन पर एक तरह से एक प्रेशर भी होता है कि वो अपना 100% जॉब को दें. लिविंग लिटिल टाइम फॉर देमसेल्व्स और अदर इंटरेस्ट्स, यानी उनके अपने लिए और अदर इंटरेस्ट के लिए बहुत कम टाइम फिर बचता है. अब ये है कि हैंडलिंग पेरेंट कम्युनिकेशन, यानी जब स्टूडेंट्स होंगे तो बाहर से जो उनके पेरेंट्स भी आएंगे तो उनके साथ कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं होते, वो हमेशा सोफिस्टिकेटेड किस्म की अच्छी कम्युनिकेशन रखने वाले लोग भी नहीं होते, उनमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत होती है. तो उनसे डील करना भी एक चैलेंज है जो नए टीचर्स को दरपेश होता है. Communicating effectively with parents and guardians, addressing concerns and building a relationship with families is important for student success. ज़ाहिर है तालिब इल्म की सक्सेस के लिए उनकी फैमिली से, उनके जो गार्डियंस हैं, उनसे एक अच्छा रिलेशन रखना ज़रूरी है. बट बिगिनिंग टीचर्स में लैक एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस इन नेविगेटिंग दीज इंटरेक्शंस. वो उनका एक्सपीरियंस लैक करता है और उनमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि उनसे वो अच्छे रिलेशन बनाए रख सकें. उसके लिए उनको फिर मशवरा दिया जाता है कि इनिशियली किसी सीनियर टीचर्स की मौजूदगी में वो इंटरेक्शन करें, ऐसा ऐसा वो खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. सेटबैक्स तो किसी भी शोबे में होते हैं, हमेशा कामयाबी हर एक को नसीब नहीं होती. नाकामियाँ और कामयाबियाँ मिली जुली चलती हैं. अगर कामयाबियों का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो तो हम अपने आप को कामयाब समझते हैं, अगर नाकामियों का ज़्यादा हो तो नाकाम समझते हैं. तो कोपिंग विद सेटबैक, इसको कैसे करना है? टीचिंग रिक्वायर्स रेजिलियंस एंड परसिवरेंस. टीचिंग के लिए एक रेजिलियंस, आप जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के बाद अपने आप को दोबारा नॉर्मलाइज करना, दोबारा अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाने को रेजिलियंस कहते हैं. परसिवरेंस है कि साबित कदमी से उस काम को करते रहना. तो ये दोनों ही बड़े ज़रूरी हैं जो टीचर्स के लिए जब उन्हें सेटबैक का सामना हो. And beginning teachers may struggle to maintain confidence and motivation when they encounter setbacks or experience failure in the classroom. यानी जो नए टीचर्स को अपना इत्मीनान बहाल रखना होगा जब उन्हें मसाइल पेश आते हैं, जब उन्हें क्लासरूम में नाकामियों का सामना करना पड़ता है. और आप जानते हैं कि टीचर हमेशा क्लास में इक्वली सक्सेसफुल नहीं होता. बाज़ औक़ात वो बहुत इफेक्टिव होता है और बाज़ औक़ात उसे लगता है कि मैं नाकाम होके जा रहा हूँ या उतना कामयाब होके नहीं जा रहा जितना कामयाब हुआ जा सकता था. तो ये वेरी करता है टीचर के मूड पर, कंटेंट पर, स्टूडेंट के मूड पर, हालात पर, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उसमें भी उसने उस सेटबैक से कोप विद करना है. जो हमने गुफ्तगू की बिगिनिंग टीचर्स के चैलेंजेस पर, उसमें हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स पर, जिसमें ज़ाहिर है उसको नापसंदीदा काम शुरू में या मुश्किल काम दे दिए जाते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट का इशू है, लेसन प्लानिंग का इशू होता है, और फिर चैलेंज है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, उनमें फ़र्क करना. फिर टाइम मैनेजमेंट का है, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है, स्ट्रेस से डील करना है, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस है, हैंडलिंग पेरेंट कम्युनिकेशन है, और कोपिंग विद सेटबैक्स है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. सी यू इन दी नेक्स्ट